See student, um, here we are going to study some very important points related with the circles. So here you can see the circle, it is having a center. Okay, now you are aware with the things like radius, diameter, everyone is aware. But suppose I draw a line which touches the circle at only one point. This line is touching the circle at only one point. So this line is called as tangent. Means a line which is touching the circle at one point is called tangent. Same way, if I draw a line which touches the circle at 2 points, which is touching the circle at two distinct points, so it is known as secant. Okay, and if I draw, this is a general line, it is a general given line. It can be a line, it can be a line segment, okay, but which is constructed in such a way that it is touching the circle only at one point, like here we call it tangent. When it touches the circle at 2 points, you can see here and here, it is not compulsory that it should pass through the center. Secant can pass from anywhere. अगर यहाँ से भी एक जा रही है, we can call it secant. ये हमारी secant ही है, because it is touching the circle at 2 points. दो अलग अलग points पे touch कर रही है, तो ये हमारी secant होगी. In this particular chapter, we are going to focus on all the properties of tangent, means all the concept related with tangent. But you should know what is secant. जो line segment या line pass होती है circle से and touches the circle at two different points, we call it secant. ये हमारी general line है, and the line which touches the circle only at one point is called tangent. और ये point कहलाता है point of contact. Okay, अब अपन इसकी दूसरी property पढ़ते हैं. Let's see. Now see, the second thing which we can learn from here is very important regarding the tangent, and that it is, if one circle is there and it is asked how many tangents can be drawn to the circle. इस सर्कल पे हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो इस सर्कल पे हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. एक टेंजेंट इधर से जा सकती है, एक इधर से जा सकती है, एक इधर से जा सकती है. मतलब जितने इसमें पॉइंट हैं उतनी टेंजेंट्स बन सकती हैं. देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, तो इनफाइनाइट टेंजेंट कैन बी ऑन द circle, but only condition is that particular line should touch the circle only at one point. It should not touch more than that. Okay, so circle can have infinite tangents, but next question arises that all the tangents will have different point of contacts to the circle. Suppose we draw one circle here and we take this point, ये एक point लिया है, and we want to pass a tangent to this point, तो only one tangent can pass through this particular point. इस point पे से सिर्फ one tangent can pass, not more than that. फिर सर्कल पे नया point लेना पड़ेगा, वहाँ से tangent लेनी पड़ेगी. बट अगर क्वेश्चन आया कि इस point से, एक point से सर्कल के ऊपर कितनी tangent बन सकती है, तो only one tangent. If condition is there is one point on the circle और उस point से कितनी tangent पास हो सकती है, तो only one tangent can pass. Second में condition is there कि अगर कोई point circle के अंदर दिया है और पूछे कि क्या इससे कोई tangent पास हो सकती है, तो your answer should come no. The tangent cannot pass through the point
which is inside the circle. But अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है कि देयर इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ये हमने एक पॉइंट ले लिया. इफ इट इज आस्क्ड कि पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तो फिर इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर सर्कल पे या गिवन सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स पास हो सकती है. तो फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, मैं आई एम ड्रॉइंग विथ हैंड, यू यूज स्केल. द पॉइंट outside the circle, at most we can draw how many tangents? 2 tangents. When a point is outside the circle, at most from this point, ज़्यादा से ज़्यादा, at most only 2 tangents can be drawn. अगर point circle के ऊपर है तो from that particular point only 1 tangent can be drawn. अगर हमने कहा टोटल सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स पास हो सकती, तो सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो सर्कल पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगे. बट इफ दे हैव गिवन द कंडीशन ऑफ 1 पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सर्कल, तो उससे 1 टेंजेंट ही जाएगी. इनसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट है, दे आर आस्किंग टू ड्रॉ द टेंजेंट थ्रू दैट, तो इट इज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज इट विल बिकम अ सीकेंट. इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट. और एक्सटर्नल अगर कोई पॉइंट दिए तो एट मोस्ट 2 tangents can be drawn from that point. ओके, अब एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट पढ़ते हैं. नाउ सपोज दिस इज अ सर्कल, one external point is given. From there I have drawn 1 tangent, from here I have drawn 1 tangent. मान लेते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. अब यहाँ से रेडियस, ये रेडियस से ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल ऑलवेज मेक एन एंगल ऑफ विच डिग्री, 90 डिग्री. और ये जो टेंजेंट है इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, ए, बी और सी. तो ये जो लेंथ है ए बी की, जो टेंजेंट ए बी है, ए बी विल बी इक्वल टू सी बी. ये दोनों लेंथ, जो 2 टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से निकल रही हैं, इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या रहेगी? सेम, ऑलवेज ऑलवेज. एंड ओके, और ये ध्यान से ऑब्जर्व करें तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइड्स हो गई, तो चारों एंगल्स का सम कितना आएगा? 360 डिग्री, बिकॉज इट इज मेकिंग अ क्वाड्रिलेटरल. तो हमें कोई भी एक एंगल अगर मालूम हो तो ये दूसरा एंगल वी कैन फाइंड. एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट कि अगर मैं यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींच दूँ, ओके, तो ये जो ट्राइंगल है मेरा, कौन सा ट्राइंगल? आई एम राइटिंग हियर ट्राइंगल AOB विल बिकम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB. यू कैन सी, अगर मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया है, लाइन ज्वाइन कर दिए, तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा COB के. इट्स वेरी क्लियर. कई बार प्रूव करने के लिए देते हैं दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है. ओके, इट इज प्रूव्ड. आप ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं. रेडियस हमेशा इक्वल रहेगा और OB कॉमन है, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू भी हो सकता है. ओके, RHS के थ्रू भी हो सकता है. अगर हमें ये प्रूव करने को बोलेंगे, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CB, ये प्रूव करने को बोले तो भी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं. एक तो रेडियस इक्वल होगा, OB कॉमन है, और टेंजेंट से रेडियस हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है? इट ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके, तो RHS के थ्रू भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकता है, और CPCT के थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं AB इज इक्वल्स टू CB. बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, यू कैन इजीली गो थ्रू दैट. वो सारे पॉइंट्स याद रखें तो एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड इट इजी. अब हम की टर्म्स एक बार नोट डाउन कर लेते हैं. नाउ सी हियर, important points are there, so note it down properly. Okay, one and only one tangent can be drawn at any point on the circle. सर्कल पे कोई पॉइंट है तो खाली 1 टेंजेंट उससे जाएगी. सेकेंड है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर to the radius
ओके, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे से अगर हमने रेडियस ड्रॉ करी है तो वो टेंजेंट से हमेशा परपेंडिकुलर होगी, मतलब विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ओके, थर्ड पॉइंट है द सर्कल कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। जितने पॉइंट्स आप सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होगी। यूनिक मतलब अलग, नई। ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज कमिंग एज no two tangents can be drawn. No two tangents can be drawn to a circle from a point lying inside the circle. मतलब सर्कल के अंदर अगर कोई पॉइंट लाई करता है, हमने समझा है, तो उससे एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सिमिलरली एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स कैन बी drawn to a circle from a point lying outside the circle. सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। The length of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करिए और सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करिए हमने तो। A line intersecting a circle in two points is called secant. Okay, concept should be clear. Go through the module again and again so that you can understand each and everything very nicely and then start solving the exercise.